I'm Ashita Mishra, the lead of CKS Studio, and I am going to for today's session of Traffic Forward Extended. The session is being conducted by our Afterburner team, which is being led by Ryan Thakur, and the speakers for today will be Ekam and Sudhanshu. We will be covering different phases of Flutter and art. And over to you, Sudhanshu. So hi everyone, I'm Ekam Jindal and I'm the average relating GDC and I'm in second year civil engineering. So today we will be discussing some basics of Flutter and also some basics of Dart. So like we'll start with Dart first. So let's discuss what is app development. So app development is basically developing software for phones and tablets in general. And then comes the subsection of cross-platform app development. And cross-platform app development is basically when you use the same code base for like multiple platforms, which includes iOS, Android, and like Mac, Windows, Unity, computer, like that. And the two most popular technologies in app development are Flutter and React. And both of them have some pros and cons. And let's see why Flutter is like step ahead from React. So Flutter has something called Hornado, which React also has, but the Flutter Hornado feature is particularly very fast and responsive to the developer's experience. And so we can basically develop software very fast and we get responses. Just like in web development, in which we can like get the response so quickly that it is very expressive. So the second thing is we have customizable widgets and other native support for Flutter, which Flutter has basically support for both Mac and Windows, or both Mac and Android. So Android clearly you have material here, right? And in iOS clearly you have Kubernetes, which is basically Flutter की आप आपकी बिल्कुल वैसे लगेगी जैसे और native apps लगते हैं, ठीक है? और performance काफी अच्छे Flutter की in comparison to React Native, it is actually just it is 2 times faster than React Native, right? So now basically Sudhanshu will take over and I'll continue. हाय एवरीवन सो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ मेरा नाम सुधांशु है और मैं करंटली सेकेंड ईयर में हूँ इंजीनियरिंग फिजिक्स में और अब लगभग 1 साल हो चुके हैं मुझे इंजीनियरिंग फिजिक्स में रहते हुए भी फ्लटर के साथ काम करते हुए। तो जैसे कि अभी आकाश ने आपको बताया कि फ्लटर की पावर को आप समझने की एक बार कोशिश करो। बहुत लोग होते हैं जो आपको कहेंगे कि आप कोडिंग कर लो, जावा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, पर आप फ्लटर ही क्यों करो? आपके मन में पहले सवाल तक ही आना चाहिए। तो पहला आंसर इसका ये है कि सिर्फ एक कोड बेस लिखने से आप अपनी खुद की एप्स बना सकते हो एंड्रॉइड पे भी, और जब आपकी प्लेसमेंट लगेगी बहुत पैसे कमाओगे तो आप आईफोन तो खरीदोगे, है ना? तो फिर आप आईओएस पे भी अपने एप्स डाल सकते हो। आप अपना खुद का आईओएस पे ऐप देखोगे, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? सिर्फ आईओएस ही नहीं, आप अपनी खुद की पोर्टफोलियो वेबसाइट भी बना सकते हो। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आप अपने प्रोजेक्ट के लिए बनाओ और हो गया आपका काम कि भैया बीएसएस से तो प्लेसमेंट लगती है। नहीं, प्लेसमेंट से आगे भी आप सोचोगे ना तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे कि आप फ्लटर पे एक बार आप अपवर्क पे जाओ, आप एक बार फ्रीलांसर पे जाओ, आपको मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स वहां पे दिखेंगे $100, $150, जिसमें सिर्फ आपको वो बोलते हैं कि 5 स्क्रीन का आप यूआई बना दो, वो भी फ्लटर पे, ताकि उनका ऐप जो है वो दोनों प्लेटफॉर्म पे चल पाए। अब मैं आपको एक चीज छोटी सी और बताता हूँ, आपको लग रहा होगा मैं सिर्फ बातें कर रहा हूँ, आप खुद देखो। ये सारी कंपनीज हैं, वो ये तो कुछ ही कंपनीज हैं जो यूज कर रही है फ्लटर को। फ्लटर क्योंकि गूगल ने बनाया है तो गूगल अपनी ऐप में तो यूज करेगा ही, तो गूगल पे तो हम सब यूज करते ही हैं। तो आप पहला वही देखो गूगल पे, गूगल क्लासरूम जो अभी आप सबने थोड़ा बहुत देखते होगा ना, असाइनमेंट देते हैं टीचर्स वगैरह, तो उसी पर डाल देते हैं जो आप कॉपी पेस्ट करके भेज देते हो। तो वो यही है, फ्लटर पे बनाया गया है। फिर आप बी लेवल देखो, थ्रेड देखो, इतनी बड़ी बड़ी थ्रेड का तो आपने प्लेसमेंट में भी बहुत सुना होगा, बहुत अच्छा पैकेज रहता है। तो ये सारी वो कंपनीज हैं जो फ्लटर डेवलपर को हायर भी करती हैं और फ्लटर को प्रॉपर अपने ऐप्स के लिए यूज भी कर रही हैं। अब बात ये आती है कि भैया फ्लटर
खुद से यूट्यूब पे C++ सीखना शुरू किया था तो सिंटैक्स इतने मिक्स हो गए थे कि पता ही नहीं चलता था प्रिंट किसमें कैसे कर रहे हैं। तो उसका सिर्फ एक ही जवाब है कि डार्ट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। डार्ट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, प्रोजेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, आपको अलग से सीखने की कोई जरूरत नहीं है। आप प्रोजेक्ट बनाना जैसे ही शुरू करोगे आपको सब कुछ खुद ही समझ में आने लग जाएगा कि हाँ लैंग्वेज जो है वो बहुत मुश्किल नहीं है। आप दुनिया में जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं वो सब दो टाइप की होती है, एक होती है स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज, एक होती है डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। अब आपको लगे इन दोनों में फर्क क्या होता है? तो आपने जब सी करी थी तो आपने ये सोच देखा होगा ना कि जब भी हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं ना, जैसे int x इक्वल्स टू 10, तो वो int हमें बताना पड़ रहा था वहां पे x को कि जो x है हमारा वो int टाइप का है, यानी x जो भी डेटा कंटेन करेगा वो int टाइप का होना चाहिए, उसमें स्ट्रिंग नहीं दे सकते आप। ये इस तरीके की जो भी लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें आपको स्टैटिकली बताना पड़ता है वेरिएबल को कि हाँ भाई तेरा टाइप ये है, कुछ int टाइप का है, कुछ स्ट्रिंग टाइप का, ये आपको बताना पड़ता है। अब डार्ट क्या है, स्टैटिकली टाइप है या डायनेमिकली टाइप है? तो आपको अभी मैं कोड करके भी दिखाऊंगा, पर उससे पहले एक और चीज बताता हूं कि डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज कौन सी होती है। वैसी लैंग्वेज जिसमें आपको सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है, उसमें आपको बताना नहीं पड़ता पहले से कि किस टाइप का डेटा ये होल्ड करेगी, नहीं बताना होता। वो खुद ही रन टाइम जब होता है तो वो खुद ही जज कर लेती है कि हाँ ये किस टाइप का डेटा है, आपको नहीं बताना पड़ता। तो आपको लगा होगा डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज ज्यादा अच्छी होती है, तो इसमें ना अच्छा बुरा वाला कोई केस नहीं होता। जब लैंग्वेज को डेवलप किया गया था तो दोनों को सेग्रीगेट इसीलिए किया गया था क्योंकि कुछ की कुछ एडवांटेज होती है और कुछ की कुछ एडवांटेज होती है। लेकिन डार्ट अभी एग्जिस्ट करती हुई दुनिया में जितनी भी लैंग्वेज है उनमें से एकमात्र ऐसी लैंग्वेज है जो ऑप्शनली टाइप लैंग्वेज है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डिक्लेयर करना है तो आप बहुत अच्छे हो, कर रहे हो तो अच्छा हो, नहीं भी करोगे तो भी ये खुद भी डायनेमिकली टाइप नहीं समझ सकती है, खुद भी समझ सकती है कि किस टाइप का आपका डेटा है। बस आपको वहां पे वेरिएबल को जो है बताना पड़ता है कि जो डेटा है वो डायनामिक है, वो स्टैटिक नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा कोड करके दिखाता हूं तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो डार्ट है ना उसको कभी भी प्रैक्टिस करनी हो तो जरूरी नहीं है कि आपके पास VS कोड होना ही चाहिए, सबलाइन होना ही चाहिए, कुछ भी होना ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। डार्ट में अपनी खुद की वेबसाइट बना रखी है डार्ट में, आप वहां पे जाओ और वहां पे सीधा कोड करना स्टार्ट करो। अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि ये स्टैटिकली टाइप डायनेमिकली टाइप जो मैंने आपको बोला था ये एक्चुअल में होता कैसे है, ये मैं आपको अभी दिखाता हूं। तो डार्ट में आपको मैंने बोला ऑप्शनली टाइप लैंग्वेज है ये। ऑप्शनली टाइप का मतलब है कि आपकी मर्जी है कि आपको किस टाइप का डेटा चाहिए, स्टैटिकली टाइप चाहिए या डायनेमिकली टाइप चाहिए। तो स्टैटिकली टाइप में क्या होता है, मैंने जैसे बताया था कि आपको बताना पड़ता है कि वेरिएबल किस टाइप का है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया int x इज इक्वल्स टू लेट्स सपोज मैंने लिखा 10। अब मुझे इसको प्रिंट करना है तो ये आप इजीली आप देखोगे तो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बोल दिया x, अब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखोगे कि रन हो जाएगा। तो मैं आपको तब तक वैसे ही समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैंने लिखा int x is equals to 10। अब यहाँ पे तो मैंने लिख दिया ना int, आप समझने विजुअलाइज करने की कोशिश करो जब तक मैं कोड करके भी दिखाऊंगा आपको कि मैंने int x is equals to 10 लिखा लेट्स सपोज। अब जो मेरा x है उसको तो मैंने बता दिया ना कि जो उसका डेटा टाइप है वो int है, यानी कि अभी जो आप देखोगे वो डार्ट जो है वो स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है अभी के हिसाब से। अब इसको डायनेमिक भी बनाया जा सकता है और स्टैटिक ऐसे भी छोड़ सकते हैं। लेकिन डार्ट में एक अच्छी कोड प्रैक्टिस क्या होती है, एक अच्छे डेवलपर की प्रैक्टिस क्या होती है, वो हमेशा ये होती है कि कोड जितना ज्यादा हो सके डेवलपमेंट के दौरान स्टैटिकली टाइप ही रखो, ताकि ये कंफ्यूजन ना हो कि जो भी डेटा आना है उसका टाइप क्या है। हो सकता है कोई जो एक्स बनाया गया था उसमें हम यही चाहते थे कि केवल और केवल int टाइप का डेटा है, लेकिन कल को कोई दूसरा डेवलपर आता है वो आकर के उसमें स्ट्रिंग लिख दे तो फिर आप क्या करोगे? वो तो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि आपने उसको डायनेमिकली टाइप बनाया है।
अब मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था int x equals to 10 और print x। अब यहाँ पे मुझे बताना पड़ा था कि उसका डेटा टाइप int है। अब मुझे इसी को डायनेमिक बनाना का मतलब मुझे सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल को int की जगह डायनेमिक लिखना होगा, तो डार्ट अपने आप इसका जो डेटा टाइप है वो डायनेमिक बना देगा। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा int x equals to 10, सब कुछ सही है, रन करूँगा तो फिर से 10 ही आएगा। अब अगर मैं इसका डेटा टाइप जो मैंने x को 10 लिखा था, अब मैं x को ही मान लो स्ट्रिंग में कर देता हूँ। मैंने चेंज कर दिया, वेरिएबल है ना, चेंज तो मैं कर ही सकता हूँ। तो अब आप अपना नाम बताओ। क्या? देवानी। ये भी है। अब मान लो मैंने x की जो स्ट्रिंग जो मेरे को लेनी है, मैंने देवानी लिख दिया है ना। तो अब इसने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। क्यों एक्सेप्ट करा? क्योंकि मैंने वहां पे डायनेमिक लिखा था, इसीलिए एक्सेप्ट करा। अगर मैं वापस से डायनेमिक को हटा करके int कर दूं तो क्या एक्सेप्ट कर लेगा? एक सवाल ये भी तो आएगा ना मतलब कि वेरिएबल ही तो है। तो आप देख रहे हो देवांगी के नीचे अंडरलाइन आ गया, हाईलाइट हो गया एक तरह। तो क्यों हो गया? इसीलिए हो गया क्योंकि आपने तो बताया था int टाइप का है, फिर आप बाद में स्ट्रिंग दे रहे हो। तो ये चीजें नहीं चलती। आपने जो बोला था आप उसी पे स्ट्रिक रहो, या तो डायनेमिकली टाइप पे स्ट्रिक रहो या तो स्टैटिकली टाइप पे स्ट्रिक रहो। अब आपको मैं ये नहीं बताऊं कि यही सेम चीज अगर मैं जावास्क्रिप्ट में करूं, तो जावास्क्रिप्ट आपने सुनी होगी, बैकएंड के लिए बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। उसमें आप ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते int x equals to 10 या स्ट्रिंग ch is equals to किसी का नाम, ऐसे नहीं कर सकते। वहां पे वो डायनेमिकली टाइप है। अब जो जावास्क्रिप्ट में सिंटैक्स होता है किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, तो हम जनरली दो चीजों से करते हैं, एक कॉन्स्ट से और एक लेट से। तो कांस्टेंट तो आपने सुना ही होगा, तो क्या होता है जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, जिसका जैसे मैंने कोई नाम लिखा वो चेंज ना हो, तो उस टाइप का होता है। तो मैं लेट से करके दिखाता हूं ताकि आपको ये दिखे कि क्या हम डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज सच में है जावास्क्रिप्ट। तो उसके लिए मैंने लिखा लेट a इक्वल्स टू 10। अब आप बताओ कि a जो है, आप बताओ a जो है वो अभी फिलहाल किस टाइप का डेटा टाइप है? इंटीजर टाइप का। लेकिन हमने कहीं नहीं लिखा ना इंटीजर, उसने खुद समझा कि इंटीजर डेटा टाइप है। अब क्योंकि ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू या कुछ भी जो भी हम उसको असाइन कर रहे हैं वैल्यू, उसको तो चेंज कर ही सकते हैं ना। अब मैंने उसको चेंज करके इन्वर्टेड कॉमर्स में स्ट्रिंग है क्योंकि, तो मैंने इसमें अगर लेट्स सपोज मैं कुछ भी लिख देता हूं, जैसे मैं लिखता हूं ड्राइविंग। अब आप देखोगे ना इसने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया कि पहले आपने int दिया था उसको भी एक्सेप्ट कर लिया, अब आपने स्ट्रिंग दे दिया उसको भी एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। अब ये इसको भी रन करेंगे तो ये भी चल जाएगा। कंसोल.log से इसमें जावास्क्रिप्ट में प्रिंट होता है। तो देखो ड्राइविंग यहाँ का आउटपुट में प्रिंट हो चुका है। तो मेरा समझाने का मोटिव यही था कि फ्लटर की आप पावर को एक बार समझने की कोशिश करो कि ऐसी लैंग्वेज सिर्फ एकमात्र फ्लटर की डार्ट ही है जिसको आपको अलग से सीखना भी नहीं है। सिर्फ प्रोजेक्ट के बनाते बनाते ही आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि अच्छा प्रिंट करना है तो प्रिंट लिखो और प्रिंट हो जाएगा। अब मोस्ट ऑफ द विजेट्स जो एक विजेट्स की भी एक चीज होती है आपको नहीं पता होगी, जैसे आप फ्लटर सीखना शुरू करोगे, हमारे और भी सेशन होंगे उसमें भी आओगे, अपने दोस्तों को भी लाओगे, तो वहां से असली फ्लटर की जर्नी शुरू होती है। और सिर्फ आपको मैं बताऊं, हमने जो सेकंड सेशन किया था वो सिर्फ 2 घंटे का सेशन था। उस 2 घंटे के सेशन में हमने पूरा बेसिक्स भी पढ़ा दिया था और एक पोर्टफोलियो ऐप भी बना दिया था। आप खुद सोच करके देखो, आप 2 घंटे से ज्यादा तो इंस्टाग्राम की रील्स पे बिता देते हो और 2 घंटे में आपका कोई एक प्रोजेक्ट भी बन जा रहा है और आप उसको समझ भी ले रहे हो, वो भी आप ही बनाओगे, हम नहीं बनाएंगे, हम तो बस दिखाएंगे और आप हमारे साथ साथ कोड करोगे। तो इतनी पावर है फ्लटर की। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे सेकंड कोर्स से जो आपको समझाएंगे आगे के टॉपिक्स। तो अच्छा, अब हम थोड़े से डार्ट को कोड कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, जिसमें से एक होता है नॉन मैलेबिलिटी। अब मैलेबल स्ट्रिंग का मतलब, मैलेबिलिटी का मतलब क्या समझ आता है किसी को? कोई भी बता दो मेरे को। जो चीज ना हो सके, राइट?
तो डार्ट में नॉन मेलेबिलिटी इंट्रोड्यूस हुई। अगर मैं किसी जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं अपने पास यहाँ पर एक स्ट्रिंग इम्पॉसिबल करके है, राइट। ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर हमने इसको नल अगर कर दिया तो जो सेकंड चीज है इम्पॉसिबल डॉट नल, फिर इम्पॉसिबल डॉट लेंथ, ये चीज इसकी लेंथ बतानी चाहिए। बट क्या इम्पॉसिबल तो एक नल स्ट्रिंग है, तो ये अपने आप में पैराडॉक्स है, राइट। तो तो आगे बढ़िए। तो अगर हमने जैसे नल स्ट्रिंग डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये नल एबिलिटी हमने इसमें इंट्रोड्यूस करी, नॉन एबिलिटी, ताकि फालतू के एरर्स डॉक्यूमेंट हो जाए। तो हम इसका कोड भी देखते हैं। तो इस ये रहा हमारे पास कोड। तो देखो ये dartpad.dev पे हमने इसका एरर लिखा है, ये स्ट्रिंग नल नहीं है, ठीक है। ये बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम होती है जब हम चीज़ों को नल कर देते हैं, तो हमें डेटा समझ नहीं आ रहा होता कि कौन सा आ रहा है या क्या इसका वेरिएबल होगा या इसको इनिशियलाइज कैसे करें, तो हम नल कर देते हैं सीधा, व्हिच इज काइंड ऑफ रॉन्ग, है ना। तो इसलिए डार्ट के लिए यूज होता है नल से। अब बाय डिफॉल्ट कोई भी चीज नल नहीं हो सकती डार्ट में, ठीक है, या फ्लड में। सेकंड चीज हम देखते हैं नल सेफ्टी, ठीक है। नल सेफ्टी क्या है कि अगर मुझे पता है कि ये चीज नल हो सकती है, लेट्स से कि मेरे पास एक लॉगिन फॉर्म, ठीक है, लॉगिन फॉर्म है, उसमें मैं क्या चीज देते हैं, एक नाम देते हैं, किसी का मेरी पासवर्ड देते हैं, उसकी बायो लिख देते हैं या कुछ ऐसे इंसर्ट डिटेल्स देते हैं, राइट। तो लेट्स से कि नेम और पासवर्ड को हमेशा आएगा, इट इज नेवर नल, राइट। नल होगा उसका बायो होगा, तो मुझे पता है कि इसकी बायो को कोड स्ट्रिंग नहीं आएगी, आई पुट अ नल सेफ ऑपरेटर इन फ्रंट ऑफ दैट, ठीक है, जैसे इधर नलेबल स्ट्रिंग है, लाइन नंबर 14, राइट। तो ये अब एरर भी देगा, ये अब मैं रन करूंगा तो ये करेगा नल। अगर किसी को गवर्नमेंट आउटसाइड में स्पीकर पे कनेक्ट करें, हां एग्जैक्टली। अच्छा, तो नॉन नलेबिलिटी देखो यहाँ एक अनकॉर्ड एक्सेप्शन है, नलेबल स्ट्रिंग इज नल, राइट। जो लाइन नंबर 15 पे नलेबल स्ट्रिंग अगर नल है तो रन टाइम लाइन दे देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई ये स्ट्रिंग का एग्जिस्टिंग नहीं करती था, उसकी लेंथ कैसे पता चलेगी, क्योंकि एग्जिस्टिंग नहीं करती तो उसकी लेंथ नहीं पता, राइट। अब अगर मैं कहता हूं कि नल हो सकता है, तो मैंने बता दिया जो नल से एक्सेस ऑफ प्रिंटर है, जब हम उसको बात करते हैं तो ये नल नहीं है, राइट। हाँ नल नहीं है, ठीक है। अब ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट आते हैं इनहेरिटेंस। क्या किसने कोडिंग के लिए इनहेरिटेंस का मतलब पता है? मतलब इनहेरिटेंस का कोई अगर मतलब बता सकता है जो क्लास से के कुछ फीचर्स इनहेरिट करता है, एग्जैक्टली। तो सिंपल तीन टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल और हायरार्की, ठीक है। लेट्स फर्स्ट लुक इनटू द सिंगल थिंग, राइट। ये तो सबसे बेसिक चीज है, एक सुपर क्लास होगी और एक सब क्लास होगी। सब सुपर क्लास के सारे फीचर्स मैं सब क्लास से एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैं देख सकता हूँ लाइन नंबर 4 में मैंने खाली सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। अभी जो सब क्लास का ऑब्जेक्ट है इसको यूज करके मैं सुपर क्लास के फंक्शंस और वेरिएबल्स को भी एक्सेस कर सकता हूं। तो दैट इज सिंगल इनहेरिटेंस। अब सिमिलरली ऐसे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होती है जिसमें क्लास जो ए क्लास है उसके फंक्शन एंड वेरिएबल्स बी और सी भी एक्सेस कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ हायरार्किकल इनहेरिटेंस बी और सी क्लासेस एक दूसरे के वेरिएबल्स एक्सेस नहीं कर पाएंगी, बट ए का दोनों एक्सेस कर सकते हैं। तो दिस इज इन केस जैसे कोई ऐसा फंक्शन है तो मेरे को एक क्लास को देना है और दूसरे को नहीं देना, तो आई कैन यूज द हायरार्किकल इनहेरिटेंस इन केस ऑफ दैट, राइट।
नाउ लेट्स गेट इनटू, ये थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है, थोड़ा सा जल्दी स्किप कर दिया। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि चीजों को अनडिफाइंड और रैंडमाइज कर देना, मतलब डिटेल्स हाइड कर देना उसमें। जैसे कि इफ यू कंसीडर एक गाड़ी है, उसके अंदर इंजन होता है, उसके अंदर और 10 तरीके के चीजें होती है। अब कार मेकर डजंट वांट टू go into the details of like making an engine, उसको बस उसकी स्पेसिफिकेशन और बेसिक डिजाइन चाहिए, राइट? उसके अंदर का कंटेंट चाहिए, तो इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है? अब डार्क में एब्स्ट्रैक्शन होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में फंक्शंस को डिफाइन नहीं करते, हम बता देते हैं बस ये वाला फंक्शन आना चाहिए जो आप क्लास डिक्लेयर करो उसके, राइट? तो हम एब्स्ट्रैक्शन की चीज ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्लास है व्हीकल, ठीक है, और एक कार क्लास है जो एक्सटेंड करती है व्हीकल। अब ये एक्सटेंड वाली चीज क्या है? सिंगल एलिमेंट है, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है? तो अब अगर मैं यहाँ से ये void starts वाला फंक्शन हटा दूं एग्जिस्टिंग, मतलब इसको कमेंट आउट कर दो, ठीक है? ये मेरे को एरर दे देगा, मतलब कि जिस क्लास को एक्सटेंड कर रहा है वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसका एक फंक्शन स्टार्ट्स, इस क्लास को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा, तभी ये एरर जाएगा, ठीक है? इस एरर का किसी भी मतलब ये इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट? और हम देख सकते हैं कि ऊपर बेसिकली कोई चीज एग्जीक्यूट हो रही है, मेन फंक्शन। अच्छा, इसके बाद एब्स्ट्रैक्शन के बाद मिक्सिंग तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। इसमें क्या होता है कि अगर मुझे मल्टीपल क्लासेस को एक क्लास के अंदर इंटीग्रेटेड करवाना है, जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो मिक्सिंग कुछ नहीं है, एक सब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है, और दो मिक्सिंग है, एक नेम और एक एज, ठीक है? ये ऊपर नेम वाला लाइन नंबर 14 है और लाइन नंबर 21 पे एज वाला मिक्सिंग, क्योंकि इसके अंदर एक वेरिएबल है इंट एज और दूसरे में एक नेम स्ट्रिंग है, इसको हम प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है? अब एक स्टूडेंट का एक टीचर है, दोनों के पास नेम और एज है, राइट? बट स्टूडेंट का रोल नंबर अलग है और टीचर का सब्जेक्ट है। तो अगर मैं इधर पूरी की पूरी क्लास स्टूडेंट कराता तो फिर वो मुझे उसको भी मतलब रोल नंबर और सब्जेक्ट को भी डिफाइन करना होता है, जो टीचर के पास नहीं है रोल नंबर और स्टूडेंट के पास सब्जेक्ट है, ठीक है? तो यहाँ पर हम विद कीवर्ड यूज करते हैं, जिससे हम एक से ज्यादा मिक्सिंग इनहेरिट कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी क्लास में, ठीक है? उसके बाद इंटरफेसेस, उसके बाद अपने पास एक प्रोजेक्ट आ जाता है। तो अगर हम प्रोजेक्ट चलाएं, अब यहाँ से फ्लटर की पावर दिखेगी, फ्लटर एक्चुअली में क्या कर सकते हैं। तो आई फर्स्ट शो माय पोर्टफोलियो वेबसाइट व्हिच आई मेड यूजिंग फ्लटर। आप फ्लटर की खास बात देखिए, फ्लटर वेब पे भी चल जाता है ना? तो अगर फ्लटर वेब पे भी चलता है तो फिर वेब डेवलपमेंट यूज करते हैं ना, फ्लटर ही यूज कर लेते हैं वेबसाइट बनाने के लिए। इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं, सीपी वाले ऑप्शन में और एप्लीकेशन में अभी भी फ्लटर है, which might be overcome in future. पहले डाउट से लेते हैं, अगर किसी को बेसिक के बारे में कुछ जानना है फ्लटर नहीं था, बिकॉज़ यू आर नॉट डिस्कस्ड, तो डार्ट के बारे में पूछ सकते हैं। ये कोई इन जनरल डाउट भी है, ऐप डेवलपमेंट भी क्यों करें, वेब डेवलपमेंट क्यों ना करें, रिएक्ट नेटिव भी क्यों करें, क्या फ्लटर क्या करें, इन दोनों में से ये भी एक बहुत बड़ा डाउट होता है कि रिएक्ट नेटिव तो सबसे ज्यादा फेमस है, स्टैक ओवरफ्लो में भी रिएक्ट नेटिव के लोग ज्यादा हैं, डेवलपर्स उनके ज्यादा हैं, जॉब्स भी उनकी ज्यादा हैं, ये भी एक छोटा सा कॉमन डाउट आता है, पर मैं तो वो भी आप पूछ सकते हो किसी को पूछना हो। Yeah, except Java से बच्चे स्टार्ट है, फिर फ्लटर है, फ्लटर इनिशियली easier वर्जन होगा, तो इसका मतलब easy इसका लॉन्ग टर्म होगा, तो easier चीज रहती है वो ज़्यादा आसान है। क्या समझते हो? तो एकदम बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो चीजें आसान होती हैं वो क्या लॉन्ग टर्म के लिए
सस्टेनेबल होती हैं, जैसे फ्लटर सीखने में तो बहुत ईजी है, तो क्या वो आगे सस्टेनेबल रहेगा, उसको सीख के फायदा है भी, या बस ऐसे ही कर लो, टाइम पास हो गया, प्रोजेक्ट बन गया, हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। देखो बात क्या है कि फ्लटर को बनाया इस मोटिव से नहीं किया था कि इजी बनाया, ये बनाया, क्योंकि आप ऐसे इस मोटिव से देखोगे तो फिर तो रिएक्ट नेटिव ज्यादा इजी है। एक बार जावा सीखो, डीएसए भी हो जाएगी, प्लेसमेंट का काम हो गया, प्रोजेक्ट के लिए जावास्क्रिप्ट सीख लो, सिमिलर ही है, रिएक्ट नेटिव सीख लो, एप्स बन जाएंगे, रिएक्ट सीख लो, वेबसाइट बन जाएगी, तो सारा काम हो गया एक जावा सीखने से। फिर तो वही सीखनी चाहिए सबको। डीएसए आप C++ में सीख रहे हो, फिर तो ये भी होना चाहिए कि C++ में प्रोजेक्ट्स बनाओ। तो इस मोटिव से कभी नहीं बनाई जाती कोई भी फ्रेमवर्क या इस मोटिव से नहीं बनाया जाता। आप फ्लटर के एडवांटेजेस को समझो और रिएक्ट नेटिव क्या है। पहला सबसे मेन एडवांटेज मैं आपको बताऊं, अगर किसी भी वेबसाइट में आपने देखा होगा एक नेविगेशन बार तो होता ही है, जो सबसे ऊपर पट्टी सी नहीं होती जहां पे वेबसाइट का नाम लिखा होता है। तो अब आपको लगा कि भैया बना तो नहीं वेबसाइट, अब इसका नाम अच्छा नहीं लग रहा, कल को हो सकता है ना आप अपनी खुद की कंपनी बनाओ, फिर आपको नाम ही नहीं पसंद आए, खुद का ही नाम बदल दो। आजकल बहुत होता है ना, कंपनी में नाम बदल देते हैं, आपकी वेबसाइट भी बदल सकते हैं। तो अब नाम बदल दिया आपने, मान लो, तो अब नाम बदलने के लिए आपको रिएक्ट नेटिव पे ना पूरा का पूरा कोड दोबारा से रन करना पड़ता है, लेकिन फ्लटर में ऐसा नहीं करना पड़ता। फ्लटर में सिर्फ आप विंडोज यूज करते हो तो कंट्रोल एस से होता होगा, मैकबुक में कमांड एस से होता है, बस दो बटन दबाने और आपका नाम चेंज करिए, आपकी वेबसाइट का करोगे। तो इतनी पावर होती है कि थोड़े थोड़े चेंजेस के लिए भी आपको पूरा पूरा कोड दोबारा रन करना पड़ता है। और दूसरा एक बिजनेस ओरिएंटेड भी माइंडसेट होता है, जैसे गूगल ने अपना, पहले फेसबुक ने अपना रिएक्ट नेटिव बनाया है, फेसबुक रिएक्ट नेटिव जो है वो फेसबुक का है, ये तो पता होगा ना आपको। गूगल इतना बड़ा टेक जायंट है, उसका फ्रेमवर्क भी ना हो मार्केट में, ये भी तो एक डिग्रेडेशन वाली बात है ना। आप गूगल ने सिर्फ बिजनेस माइंडसेट से तो बनाएंगे नहीं, फिर तो गूगल अपनी ऐप बनाएगा और कुछ बनाएगा नहीं। और अभी इंडिया में स्टार्टअप कल्चर बहुत टाइम से चल रहा है, आपने सुना ही होगा, कई लोगों का मन भी होता होगा कि कभी कर ले कुछ, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। तो आप ट्रेंड भी एक बहुत बड़ा स्टार्टअप है, आपने सुना ही होगा, कुणाल साहब की वीडियोस भी आप यूट्यूब पे देखते ही होंगे, बहुत पॉपअप होती है, पेड होती है हालांकि वो, पर पॉपअप तो होती है। तो अब उस पे आप ये चीज देखो कि उन्होंने इतना बड़ा स्टार्टअप ऐसे नए प्लेटफॉर्म पे स्विच कर लिया। आप खुद सोच करके देखो, उन्होंने अपना जो ऐप स्टार्ट किया था ना, वो रिएक्ट नेटिव पे किया था, पूरा का पूरा है, पूरी कंपनी उनकी रिएक्ट नेटिव पे बनी थी। अब उन्होंने सडनली ऐसा उनको क्या हुआ, जो ऐसे तो होगा कि गूगल वालों ने पैसे दिला दिए होंगे कि बना लो हमारे में, हमारा नाम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। जाहिर सी बात है ना, गूगल क्यों ऐसा करेगा, गूगल फेसबुक तो है नहीं। तो अब बात यह है कि फ्लटर पे स्विच कर लिया उनको, क्यों, क्योंकि फ्लटर के डेवलपर्स जो हैं वो मोस्टली यंग डेवलपर्स हैं। जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स वो हैं जो 35 40 प्लस के, जो पहले से ही डेवलपर्स हैं, उनके मन में फ्लटर को लेकर बहुत हेट है। अब वो हमेशा रहे, क्योंकि वो तो उसी माइंडसेट से आया है ना, एक जावा करो उससे सारे काम हो जाते हैं, बैकएंड की बारी आएगी तो PHP सीख लेंगे, है ना। अब आप देखते हो कि PHP का नाम भी सुनने को नहीं मिलता, लेकिन ये गलत किया, ऐसा भी मत सोच लेना कि PHP काम यूज नहीं होती, गूगल PHP पे बनी हुई है। तो ऐसी बातें कभी मत सोचना कि इजी जो है तो सस्टेन नहीं करेगी, इतनी भी इजी नहीं है, करना तो शुरू करो, समझना इजी है, करना इतना इजी नहीं होता। इतना इजी होगा तो फिर तो हर कोई फ्लटर डेवलपर बन जाता, इतना इजी होगा तो हर कोई बन जाता ना, तो इतना इजी भी नहीं है। जो कोड कॉन्सेप्ट है वो इजी आपको सीख करती है कि यू आर वेरी सिमिलर टू जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन। तो इजी के लिए लगता है कि इजी है, इजी नहीं है। कोई पहली बार अगर कोड करेगा तो आप नॉट सजेस्ट कि वो डार्क से स्टार्ट है, सजेस्ट जो सिंपल से जावा से स्टार्ट है, उसी से उसकी बेसिक बिल्ड होगी। बट अगर आपने वो लैंग्वेज सीखी हुई है तो स्विच करना इजी है, समझ रहे हो। अगर आपको जावा आती है और आपने जावास्क्रिप्ट पे स्विच किया तो इट इज काफी सारी नई चीजें आपको सीखने को मिलेगी, जैसे डायनेमिक या तो आपको पहले बातें नहीं मिलेंगे। जबकि फ्लटर उनके लिए है, जावास्क्रिप्ट उनके लिए तो जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी आती है ना। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है, अब आप कहते हैं मेरे को मोबाइल वाले टॉपिक में जाना है, मुझे ऐसी चीज चाहिए जो एकदम क्विक हो, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज्ड हो, सारे मॉड्यूल आपको इसके फीचर्स हो सकता है, तो फ्लटर इज देयर फॉर इट। और एक बिगिनर के लिए डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया, उसको बेसिक कोडिंग आती है, बट इट डजंट नो कि जैसे जिससे क्वेश्चन पूछा था
हर्षित Yes. यस तो यस एक देर में अगर बेसिक कोडिंग आती है तो अगर बेसिक कोडिंग आती है तो वी कैन इजीली लर्न डार्ट विद इन अ फ्यू डेज, ठीक है। और डार्ट तो बस ये याद हो जाए, थोड़ा बहुत उसके बारे में जान लिया, फ्लटर में मूव करेंगे तो अभी हम प्रोजेक्ट डिस्कस करते हैं। उसके बाद तेरे को समझ आएगा कि प्रोजेक्ट कितनी सुंदर बन सकती है, यूआई कितना डिटेल बन सकता है। रिएक्ट में या आयोनिक भी हाइब्रिड डेवलपमेंट का सपोर्ट करता है, उसमें यूआई क्लियर करता है, ठीक है। जैसे इंस्टाग्राम ले, एक बार देखे तो इंस्टाग्राम का यूआई बड़ा स्विच होता है, जैकी होता है, पावर से ही होता है। और उसका कारण क्या है कि उनको बेसिकली उस बटन की स्टेट को चेंज करने के लिए बात को सोचना पड़ता है, इसको सही जगह कहाँ डालें, क्योंकि फ्लटर में के सारे फ्लिप बने हुए आ गए। अब मैंने मैथ बार में एक बड़ी आइटम डाल दिया, वो बन गया, रिएक्ट में मैथ बार तो खुद बनाना पड़ता है। अगर खुद बनाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और टाइम के अलावा अगर मेरे को चेंजेस करने हैं तो वो एक्सपेंस आ जाता है। और डेवलपर एक्सपीरियंस अगर तुम डेवलपमेंट में जाना तो हमें तो मजा आएगा, अगर जिसको करने में मजा आएगा वो कॉलेज में बेस्ट लगेगा। रादर है कि मार्केट में क्या चल रहा है। और अगर सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो जीरोधा की कंपनी जीरोधा एक फिनटेक कंपनी है, बूटस्ट्रैप कंपनी, उन्होंने 2016 में क्या स्विच कर लिया था, ठीक है। बट 2020 में ये स्विच बैक टू फ्लटर, they started with Flutter, and why? Because Flutter is easier and Flutter developers are basically more ज़्यादा क्वांटिटी अवेलेबल है इंडिया में। तो इंडिया में Flutter चल रही है, ग्लोबली React यूएस वगैरह की मार्केट में ज़्यादा चल रही है, बट ट्रेंड्स ये कह रहे हैं कि विदिन 1 years हम मार्केट कर रहे हैं Flutter पर। और मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताता हूँ, जैसे एक फायदा और भी है फ्लटर का। जैसे मुझे लगभग 1 साल हो गया करते हुए, है ना। तो आपके मन में भी आएगा कि ऐसा थोड़ी होगा कि आप कोई अपनी कंपनी बनाते हो, कुछ भी किसी और कंपनी के लिए आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो, तो ऐसा तो होगा कि मतलब ऐसा होता है ऐसे कि आपको सिर्फ यूआई बनाने का काम देते हैं, बैकएंड के लिए उनके पास इंजीनियर्स होते हैं ऑलरेडी। लेकिन जब तक आप फुल स्टैक डेवलपर नहीं बनोगे ना, तब तक आपको वो कोर जो डेवलपर वाली फील है ना वो आएगी। अब ऐसा नहीं है कि यूआई सिर्फ यूआई डेवलपर बनना बेकार है, नहीं, वो शौक की बात है। हो सकता है आपको यूआई बनाने में इतना इंटरेस्ट आ जाए, किसी को डिजाइनिंग में इंटरेस्ट होता है, ड्राइंग बनाने का बहुत इंटरेस्ट होता है। जैसे मैं देखता था बच्चों के कोड जो छोटी क्लासेस में, तो ड्राइंग में भी फुल नंबर ले आते थे। मेरे तो ऐसा लगता था ड्राइंग में भी पास होना मुश्किल है, तो ड्राइंग तो होती नहीं। तो यूआई बनाने वाला पार्ट भी होता है जो कई बच्चों का बहुत स्ट्रांग होता है, वो डिजाइन कर लेते हैं कि हाँ यहाँ ये कलर होना चाहिए, वो कलर होना चाहिए, तो उनको सिर्फ यूआई बनाने में फोकस करते हैं, तो वो सिर्फ फ्लटर तक ही सीमित रह गए। फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है, जिसको बैकएंड बनाना भी खुद ही आता है, उसको किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, अकेला इंसान पूरा ऐप बना सकता है, वो है फुल स्टैक डेवलपर, जिसको फ्रंट एंड भी आता है, बैकएंड भी आता है, टेस्टिंग भी आती है और वर्जन कंट्रोल भी आता है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि आपने एक बार ऐप बना लिया प्ले स्टोर पे या गूगल के स्टोर पे डाल दिया, आप उसके बाद उसमें कोई चेंज करोगे। उसमें चेंज करने के लिए भी अलग से CI/CD वगैरह वो बहुत चीजें सीखनी पड़ती है, गिटहब एक्शंस वगैरह से भी कर सकते हो, बहुत चीजें सीखनी पड़ती है उसके लिए भी। जिसको सब कुछ आता है ना वो होता है फुल स्टैक डेवलपर। तो अब जैसे मैंने 1 साल मुझे हो गया, तो मैंने फ्लटर के बाद अब धीरे-धीरे नोड.js सीखना शुरू कर दिया। तो अब आपके मन में आएगा कि क्या मुझे जावास्क्रिप्ट अलग से सीखनी पड़ी होगी क्या? अब आप सोचो मैं डार्ट पे काम कर रहा हूँ, फ्लटर पे C++ कर रहा हूँ और जावास्क्रिप्ट की मैं बैकएंड लिख रहा हूँ, तो 3 लैंग्वेज में एक साथ लिख रहा हूँ, तो क्या मेरे सिंटैक्स मिक्स हो जाते होंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होता, और कभी नहीं होगा आप लोग के साथ। जिस टाइम मेरे जब मेरी DSL क्लास होती है तो मुझे तुरंत C++ वाले सिंटैक्स दिमाग में सेट हो जाते हैं एकदम। ऐसा नहीं मुझे कुछ अलग से करना पड़ रहा है कि हाँ मुझे याद आए कि अच्छा ऐसे करते हैं, सी आउट होता है, डार्ट में प्रिंट होता है, उसमें console.log होता है, मुझे याद नहीं करना पड़ रहा। मैं बाय ऑर्गेनिकली मैं खुद टाइप कर रहा हूँ और चीजें हो रही है। अपने लैपटॉप पे इतनी कमांड हो जानी चाहिए कि आंख बंद करके भी आप टाइप कर सको। हाँ, गूगल सर्च तो डेवलपर की वो है, रीढ़ की हड्डी कहते हैं ना ऐसे, उसके बिना तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो गूगल सर्च करना कई लोगों को ये नहीं लगता है गूगल सर्च करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है क्या, हमें आता नहीं है क्या। और आप देखोगे मोस्टली ऐप्स ऐसे होते हैं, हर ऐप में आपने देखा होगा ना एक लॉगिन पेज, साइन अप पेज, क्रिएट अकाउंट वाला होता है ना कि पहले अकाउंट क्रिएट करो फिर लॉगिन करो। तो आप सोचो जिस डेवलपर ने वो पेज बनाया है वो पिछले 15 साल से डेवलपर है, तो वो अपने कितने
ये लॉगिन पेज क्रिएट अकाउंट ये बनाता रहता होगा क्या? तो नहीं बनाता होगा। वो सिर्फ कोड को कॉपी पेस्ट करता है, लॉजिक को कॉपी पेस्ट करता है और सिर्फ यूआई पे काम करता है, क्योंकि हर ब्रांड अपना यूआई अलग चाहता है। उसके लिए भी यूआई डेवलपर्स होते हैं जो आपको यूआई यूएक्स डेवलपर जो आपको यूआई बनाने देंगे। ऐसा भी नहीं है कि आपको, अब जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, आज जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मेरा एक दोस्त वो भी एक वीडियो में ही है, तो वो मुझे हमेशा यही बोलता था कि यार तेरे यूआई बहुत अच्छे होते हैं, मैं क्यों नहीं बना पाता ऐसे यूआई? मेरे मन में क्यों नहीं आता कि यहाँ पे ये कलर होना चाहिए, तेरे मन में कैसे आ जाता है? तो मैं उसको यही बोलता था कि हम तो डिजाइनिंग थोड़ी सीख रहे हैं, डिजाइनिंग सीख रहे होते तो उधर वाले ब्लॉक में होते हैं, इधर वाले ब्लॉक में थोड़ी होते हैं। तो आप ये चीज देखो, डिजाइन भी करना है आपको, डिजाइन करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आता तो भी कोई बात नहीं, आपको कोड करना सीखना है कि किसी भी तरीके की फंक्शनैलिटी को आपको ऐड करना है तो आप कैसे करोगे। बहुत सारी चीजें होती है, ऑथेंटिकेशन आना चाहिए, शिमर इफेक्ट आना चाहिए आपको, कि हाँ जब तक लोड नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लैक स्क्रीन दिखती रहेगी तब तक। आपने देखा होगा ना जोमेटो वगैरह में जब लोड नहीं हो रहा होता रेस्टोरेंट पे इफेक्ट सा आ रहा होता है कि हाँ थोड़ी देर में लग रहा होता है कि कोई तो आएगा जो हमें खिलाएगा। पर वही है, तो वो सब चीजें भी सीखनी पड़ती है। और आप, मैं आपको बताऊं, आप जब कुछ सीखोगे ना थोड़ा बहुत भी, 5-6 महीने आप दो फ्लटर को दो, उसके बाद ना आपको खुद बस दिखने लग जाएंगे। मुझे कितनी बार, मैं आपको बता रहा हूँ कितनी बार अभी भी स्टिल एग्जिस्ट करता है इंस्टाग्राम पे iOS पे स्पेसिफिकली जो रील शेयर करने वाला ऑप्शन होता है ना, तो व्हाट्सएप पे रील भी शेयर करता ढंग से 10 में से 3-4 बार ही करता है, बाकी बार वो अटक जाता है। वही बहुत टाइम से दिक्कत चल रही है। अब कई कहते हैं कि जब तक iOS में अपडेट नहीं आएगा तब तक वो ठीक नहीं होगी। अब ये कोई बात नहीं बताओ, iOS का क्या लेना देना इंस्टाग्राम से? कोई लेना देना तो है नहीं ना। तो अब इसमें अब वो लोग पीछे से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसमें भी टाइम लगता है। तो आप ये सोचो कि इंस्टाग्राम हजारों लाखों लोग उन्होंने हायर कर रखे हैं, उनके ऐप्स में इतनी दिक्कत आ जाती है, तो आप तो बिल्कुल बिगिनर हो। तो आपके ऐप में अगर यूआई अच्छा नहीं दिख रहा तो इसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि आपका वो काम ही नहीं है मेरे। तो आपको हम अपने प्रोजेक्ट दिखाते हैं, इनके प्रोजेक्ट देखो, आपको देख के आप फ्लटर की पावर का अंदाजा हो जाएगा कि हाँ कितने बढ़िया है। तो सबसे पहले तो ये पोर्टफोलियो वेबसाइट मैंने पूरी फ्लटर में बनाई है। इसमें कुछ बैकएंड भी है, ये यूआई है, ठीक है, इसमें लाइट मोड भी है, डार्क मोड भी है। ये बेसिक पोर्टफोलियो वेबसाइट है जो सबके होनी चाहिए, बेहतर है, सब डेवलपर्स की होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर थोड़े बहुत मैंने ब्लॉग्स भी करते हैं, तो पहले ब्लॉग्स से कवर कर लेना, और ब्लॉग्स के अलावा एक एनिमेशन जो है पूरी फ्लटर पे इसलिए पैकेजिंग होती है, ठीक है। और मतलब बेसिकली ये सब चीजें फ्लटर पे जैसे चीजें रेडीमेड मिल जाती है, जो हमें हमारा ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं एक और प्रोजेक्ट, लेट्स सी कि गूगल डॉक्स पर एक प्रोजेक्ट बनाया था, ठीक है, वीडियो बनी है पास में वो करता हूं। अब आप सोच करके देखो, आप गूगल डॉक्स यूज करते हो, इन्होंने तो डेवलप किया हुआ है, तो आप भी इस पोजीशन में सेम होंगे। जस्ट 6 महीने 7 महीने 8 महीने ज्यादा से ज्यादा 1 साल दे दो, आप और भी अच्छे प्रोडक्ट्स भी बना सकते हो और प्रो को बना सकते हो। एक चीज और आपको ध्यान रखना, जो फर्स्ट ईयर में आपको जनरली नहीं पता होता कि जो हमारी वीडियो की आईडी है ना जो आपको मिली होगी, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। उसकी आप प्रॉपर आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी, वो देखना। जैसे कि जब तक अकाउंट उस पर बनाओगे ना तो बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, तो उन चीजों को अवेल करना तो बिल्कुल मत छोड़ना। जब तक आपकी स्टूडेंट आईडी है, आप अनलिमिटेड प्रोजेक्ट्स गिटहब पे डाल सकते हो। गिटहब प्रो जो होता है ना, जो सब्सक्रिप्शन पे मिलता है, वो आपको फ्री में मिलता है। ऐसे ही कैनवा का भी आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलता है नेटिव आईडी से। तो जो भी स्टूडेंट आईडी से बेनिफिट्स मिलते हैं ना एज अ डेवलपर, सबको यूज करो। तो अच्छा, ये दोनों पे चलता है, वेब पे भी चलेंगे और एंड्रॉइड पे भी चलता है।
ठीक है, आगे का स्टेज जो सुधांशु है वो सुधा देगा आपको। बट इसमें मैंने क्या इम्प्लीमेंट करा है, मैंने इसमें ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट करी है गूगल से, और बैकएंड में मैंने फायरबेस यूज करी, ठीक है। और इसमें जो आपकी वो फंक्शनैलिटी होती है, एक टाइपिंग के लिए चीज आ रहा है, उसके लिए समथिंग कॉल्ड रिच टेक्सटिंग फिल्टर, तो वो बोल्ड करने की फंक्शनैलिटी की सब चीजें उससे करनी है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसके अंदर सॉकेट आएगा जो साइमल्टेनियस एडिटिंग सपोर्ट करता है। जैसे आपने नोटिस करा कि आप गूगल डॉक्स पे जाते हो, आप लिंक शेयर कर लेते हो और दूसरे के पास क्या जाते हो तो देख लेते हैं, पहले हम एंड्रॉइड पे देखते हैं कैसे चलता है। तो बेसिकली सबसे पहले हम एक लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद एक नया डॉक बना लेते हैं, डॉक बनाएंगे तो सिंपल डॉक बनाएगा, और जैसा गूगल डॉक्स का होता है ना बिल्कुल एग्जैक्टली वही यूआई है, क्योंकि हम यूआई डिजाइनर से तो हमने कॉपी कर ली है, राइट। तो यहाँ पर सिंपल चल रहा है, बट ये तो आप कहोगे कि तो बस टेक्स्ट दिखाने को होगा स्क्रीन पे, नहीं, ये साथ साथ टेक्स्ट बैकएंड का फीड भी होता है, ये टेक्स्ट बैकएंड पे सेव भी होता है, ठीक है। तो अगर एक चीज हम ये सब फंक्शनैलिटीज के अंदर कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट वगैरह ये सब बना सकते हैं, है ना, डॉक्स का नेम भी चेंज कर सकते हैं। अब वेब पे आ जाता है, अगर हमें वेब पे डेमो देखना है इसका, तो वेब पे आप देखो दो ब्राउजर्स में मैंने साइमल्टेनियसली खोल लिया, ठीक है। एक ब्राउजर में मैंने डॉक्यूमेंट क्लिक किया, अब इस डॉक्यूमेंट का लिंक मैं दूसरे ब्राउजर में खोलूंगा, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पर कोई सेम डॉक खोलूंगा। अब सबसे जो मेरे हिसाब से इसकी यूएस पेज प्रोजेक्ट की या जिसको सबसे ज़्यादा टाइम लगा बनाने में, वो तो सॉकेट आया उससे साथ साथ दो चीजें चलती है, तो अब आप देखना कि ये साथ में चलेगा, और दिस इज नॉट लाइक बट ये एक साथ में चलेगा, राइट। दिस इज द बेस्ट थिंग वी कैन डू सॉकेट आया, ठीक है। और सारी चैट आप के यूज करते हैं वेब सॉकेट्स, और आपकी जितनी पर्टिकुलर थिंग होती है वहाँ पर भी एक चीज यूज होती है, और बाकी कई सारी जगह का वेब सॉकेट्स की इम्प्लीमेंटेशन है। तो बैकएंड में फर्स्ट स्टेप होता है कि आप ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्री में यूज करते हैं, इसका बैकएंड फायरबेस पे है, और थोड़ा बहुत इसमें मैंने नोड वगैरह यूज किया कुछ केस के लिए, और MongoDB यूज किया। फायरबेस को यूज फॉर ऑल द ऑथेंटिकेशन, राइट, जो डेटा सेव हो रहा है वो MongoDB से सेव हो रहा है, API से जो है वो एक्सप्रेस में लोड होती है। और इसके अलावा जो सपोर्ट ही हो गया, इसके अलावा दूसरा एक प्रोजेक्ट है मेरे पास WhatsApp पे, ये तो मैंने ये लाइव भी है, चेक भी कर सकते हो, बट इसके क्या होगा, अगर इसकी ऐप आपको डाउनलोड कर सकते हैं, दे दूंगा कि वो चेक भी एक्स्ट्रा दे दूं, बट इसमें मैंने स्टेट मैनेजमेंट के लिए रिवर मॉड यूज किया है। बिट लेवल सेल्स प्रोजेक्ट्स के लिए रिवर मॉड इज द मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरी इन द फ्लटर कम्युनिटी, राइट, जिसमें और ऑप्शंस क्या है, स्टेट मैनेजमेंट होती है। स्टेट मैनेजमेंट अगर हम समझने जाए तो स्टेट मैनेजमेंट का मतलब होता है जैसे कि स्क्रीन में उसमें मेरे पास टेक्स्ट, मैंने एक बटन क्लिक किया, वो टेक्स्ट चेंज हो गया, राइट। हमने जो पोर्टफोलियो बनाई थी उसमें थोड़ी सी प्रोवाइडर की स्टेट मैनेजमेंट करी थी, उसमें बटन क्लिक करके नाम चेंज होगा, राइट। तो वो जो स्टेट मैनेजमेंट का पार्ट है उसके लिए मैंने रिवर मॉड यूज करा। यहाँ पर ग्रुप चैट इमोजीज और वीडियो कॉल्स इंटरैक्ट करने की सब चीजें हैं ये आरपी अभी लाइव है, इसको इसकी पोर्टफोलियो होगी। और बेसिकली जितने भी प्रोजेक्ट मैंने अभी तक फ्लटर में बनाया है ये उनको से कुछ डेटा वर्क्स थे और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी इनमें काम चल रहा है, बट मेन चीजें जब तो अभी जैसे एक बार यश कह रहा था कि ये लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे, जब कुछ सीख जाएगा थोड़ा तो यहाँ पर स्टेट मैनेजमेंट और बैकएंड में भी नोड जैसे भी नोड जैसे शिफ्ट कर रहा है, तो वो चीजें और तक होती जाएंगी। और नोड बेस को वर्ल्ड वाइड यूज होता ही है, होता आ रहा है, होता रहेगा। और जहाँ तक बात है फ्लटर की, फ्लटर से तुम ऐसा ही बना सकते हो जिसका कुछ जवाब नहीं है ना। और सुधांशु की साइड कर लेना, सुधांशु भी कर लेगा।
तो जैसे वो लोडिंग एनिमेशन आप अभी देख रहे हो, जब तक ये लोड हो गई वैसे तो लोड हो गई। और किसी का कोई डाउट हो तो बताओ, तब तक मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ और फिर आपको अपनी वेबसाइट दिखाता हूँ। क्या किसी का कोई डाउट? मतलब आज जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तुमने, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, नलिबिलिटी डार्ट पढ़ा था, जब मैं किसी को उसमें डाउट हो कि क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क में डिफरेंस क्या होता है तो वो पूछ सकते हो, ये आपको अच्छे से समझा देंगे यहाँ। और अगर इनके अलावा भी और भी कोई डाउट हो और भी जैसे उसके मन में आया तो और किसी के मन में भी कोई डाउट आ रहा हो तो वो भी पूछ सकते हो। तो मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखाता हूँ। तो अभी जब ये वेबसाइट खुली उससे पहले आपने देखा होगा ना कोई एक कर्ली ब्रेसेस टाइप का लोडिंग एनिमेशन आ रहा था, तो वो भी एक पैकेज है जो सीधा आपको इंपोर्ट करना है और यूज करना है। ऐसा नहीं कि आपको वो पूरा खुद से लोड करना है और खुद से पूरा दिमाग लगाओ तभी जाकर के वो आप अपनी उसको वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप अभी ये देखो, ये जो लिखा आ रहा है मेरा नाम और मोबाइल नंबर, ये एलिमेंटेड टेक्स्ट है। तो क्या ये मुझे पूरा खुद से कोड करना पड़ा होगा? तो नहीं, पार्शियली करना पड़ता है। पहले इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने के बाद उसमें आपको जो टेक्स्ट चाहिए वो कितना ड्यूरेशन में ये चेंज होगा वो आप आधे घंटे यहाँ बैठे रहो, 100 बार ये ऐसे चेंज होगा, 100 बार के बाद होगा ही नहीं। फिर वो अटक जाएगा। जब तक मैं रीलोड नहीं करूँगा ना वेबसाइट को तब तक वो एनिमेशन हट जाएगा, मेरा नाम आएगा और उसके बाद वो हट जाएगा, वो स्टैटिक हो जाएगा एकदम, वो चेंज ही नहीं होगा। तो इस तरीके के भी आप काउंटर को डाल सकते हो कि 100 बार ही चेंज हो, या आप इनफाइनाइट भी डाल सकते हो कि कभी रुके ही ना। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो आप इसमें कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे क्या होगा आपको, जैसे इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, गिटहब है, ये डाउनलोड में रेज्यूमे है, इस तरीके के आप सारे अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट पे भी बटन ऐड कर सकते हो। आप इसके नीचे आप देखोगे तो ये सारे 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने बनाए हैं। तो सबसे पहले तो ये रेटिंग पीडिया है, तो ये विकिपीडिया जैसा साउंड कर रहा होगा, भले ही पर जब बना रहे होते हैं ना ऐप तो नाम ही ध्यान नहीं आता, कोड करना आता है तो नाम ही ध्यान नहीं आता कि नाम क्या रखें ऐप का। नाम रखना ही बड़ी मुश्किल वाली चीज हो जाती है। फिर ऐसे ही जो भी मन में आता है तो ऐसे ही रखना पड़ता है आपको कि ये वो ऐप है जो अभी जो लेटेस्ट मूवीज आई हैं, आ रही हैं, जो टीवी शोज आ रहे हैं, जो पहले आए थे उनकी रेटिंग्स बताता है। IMDb पे आपने देखा होगा ना, कई लोगों ने IMDb पे जो रेटिंग चल रही है ये रियल टाइम रेटिंग बताता है कि क्या रेटिंग चल रही है किसी भी मूवी की। उसके बाद ये टॉप में ChatGPT है, तो इसमें क्या जो ChatGPT है ना पूरा उसका पूरा कोड मैंने अपने हिसाब से बनाया। अब आप कोड बनाने की जरूरत ही क्या थी, अच्छा खासा वो चल तो रहा है उनका, जरूरत कुछ नहीं थी। बस जरूरत ये थी कि जो ऊपर आपको वो रॉकेट सा दिख रहा होगा राइट हैंड साइड में नेविगेशन का, वहां पे क्लिक करोगे ना तो वहां पे मेरे बारे में लिखा आता है। तो मुझे बस यही देखना था कि ChatGPT की जो वेबसाइट है या जो ऐप है उसमें मेरा नाम भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने पूरा ऐप ही बना दिया था, वो पूरा तो नहीं बना दिया था इसलिए। उसके बाद ये चैटशिप है, तो ऐसे ही WhatsApp पे भी बहुत टाइम बिताया है और बिताते ही आगे बिताएंगे, तो उसको देख के मुझे लगा कि ये चैटिंग ऐप भी अपना होना चाहिए। तो ये चैटिंग ऐप वो है जिसमें आप 1-on-1 तो आप बात कर ही सकते हो अपने दोस्तों को, ग्रुप भी बना सकते हो आप इसमें पूरा WhatsApp की तरह, बस इसमें कॉलिंग फीचर वगैरह नहीं है, अभी वो भी ऐड कर दूंगा। उसके बाद ये टेक न्यूज ऐप है, ये स्पेसिफिकली इंडिया में जो लेटेस्ट टेक न्यूज चल रही है अभी फिलहाल, जो भी आजकल पर एबीपी न्यूज पर या उस पर अति अमल चल रहा है, लेकिन अभी जो टेक न्यूज चल रही है वो सभी बताएगा। और ये सिर्फ टेक न्यूज वाला ऐप है, तो सिर्फ टेक की न्यूज ही मिलती है क्या, बाकी पान मसाले वाली जो न्यूज होती है वो नहीं आती। तो उसके लिए अभी अब मेरा लिंक्डइन चेक कर लेना, उस पर मैंने अभी नया जो ऐप बनाया है उसमें जैसे ही खोलोगे पहली फोटो ये निशा की लिखती है, बताओ हमारी आर्मी हमारी है। तो आप उसके बाद जो मैंने ये शॉपिंग ऐप बनाया था, ये शॉपिंग ऐप बनाने का मेरा कोई मन नहीं था, पर इसलिए बनाया था क्योंकि एक ई-कॉमर्स ऐप तो होना चाहिए। इस मोटिव से बनाया था कि कोई भी कंपनी कभी भी हो सकता है ना, कोई मुझे देख ले कि हाँ इसको थोड़ी बहुत कोडिंग आती है तो इससे अपना प्रोजेक्ट बनवा लेते हैं। तो मोस्टली होता क्या है, जब भी आप डेवलपमेंट सीखना स्टार्ट करते हो, अगर आपने ई-कॉमर्स ऐप बनाना सीख लिया ना तो आप बहुत मतलब आप ये समझो कि 70% फंक्शनैलिटी आप समझ चुके होगे, क्योंकि इसमें ऑथेंटिकेशन भी लगेगी, कार्ड तो कैसे प्रोडक्ट तो कैसे कार्ड में डालना है उसके लिए स्टेट मैनेजमेंट लगेगा, रियल टाइम जो ऑर्डर का प्राइस है वो अपडेट हो उसके लिए भी लगेगा, बहुत सारी फंक्शनैलिटी आप बहुत जल्दी सीख लेते हो। उसके बाद ये कोविड-19 का ऐप है तो बिल्डिंग भी हो गया।
पर कोविड-19 का है ये भी ना रियल टाइम डेटा बताता है। अभी आज जो चल रहा होगा ना इंडिया में केसेस, सिर्फ इंडिया में नहीं ये सारी कंट्रीज का बताता है, स्पेसिफिकली अलग-अलग है कि इस कंट्री का कितना है, उस कंट्री का कितना है, हर कंट्रीज का अलग-अलग बताता है। ये है सारे के सारे लाइव है। आप मेरे लिंक्डइन पे चेक करो तो वहां पे मैंने लिंक भी मेंशन कर दिया है, ये आपको चलते हुए दिखाई देंगे। और कोविड वाले तो मैं जरूर आपको रिकमेंड करूंगा क्योंकि देखो आप, क्योंकि उसमें मैंने ना एनिमेशन पे बहुत ध्यान दिया है। अब आपको लग रहा होगा कि ये सब डेटा आता कहां से, रोज-रोज थोड़ी मैं अपडेट करता हूंगा कि इंडिया में इतने केस हो गए, चाइना में इतने हो गए, पाकिस्तान में इतने हो गए। हालांकि मुझे क्या पाकिस्तान से लेकिन केस तो दिखाना ही है ना, तो आप मैं तो अपडेट करूंगा नहीं ऐसे डेवलपर की कितने हो गए। तो इसके लिए जो होती है ना एक एपीआई का कांसेप्ट आता है, जो आपने सुना तो होगा एटलीस्ट एपीआई नाम की कोई चीज होती है, समझ नहीं आया वहां पर, वो भी समझ जाओगे धीरे-धीरे सेशंस में आओगे तो। अब ये है, देख लो आप इस तरीके के एनिमेशंस आपको रियल टाइम में देखो टोटल केसेस कितने हैं। अब किसी भी कंट्री पे एक बार पाकिस्तान ही कर रहे हैं ये देखो, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है तो इस वजह से ये लोड नहीं हो रहा है। हालांकि ये रियल टाइम दिखाता है डेटा, कितने केसेस चले हैं, कितने एक्टिव यूजर्स हुए हैं। इस तरीके का एनिमेशन भी आप डाल सकते हो, इस तरीके का एनिमेशन आप डाल सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने प्रोजेक्ट्स में डाल सकते हो। अब जो भी फर्स्ट ईयर में उनके लिए तो मैं खासतौर पे बताऊंगा, आप अपने मन से कुछ भी स्टार्ट कर दो कोड करना। कुछ भी का मतलब क्या, कुछ भी कर दो, क्या ऐसे नहीं। तो जैसे फ्लटर को देखने आए हो, फ्लटर की पावर क्या है थोड़ी बहुत पता भी चल रही होगी, तो आप फ्लटर को सीखना शुरू करो। और सिर्फ खुद मत सीखो कि कुछ सीख लिया हमें आ गया, हमारे प्रोजेक्ट्स बन गए तो हो गया, क्या नहीं, ऐसा कभी मत करो। अच्छा डेवलपर हमेशा वो होता है जो जितना कम्युनिटी से लेता है उतना ही इम्पैक्ट भी करता है। जैसे हम लोग कर रहे हैं, तो आपका भी यही है। अब आप सेकंड ईयर में होगे तो आप यहाँ करोगे, तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो अब आप सीखना स्टार्ट करो, फ्लटर को सीखना स्टार्ट करो, लिंक्डइन पे रोज डालो, जो भी सीखते हो आप वो डालो। अगर किसी दिन कुछ नहीं भी सीखा ना तो वही डालो, आज मैंने कुछ नहीं सीखा, एक पोस्ट डालोगे, अगले दिन से खुद एक्टिव हो जाओगे सीखने में, कभी टाइम वेस्ट नहीं करोगे। जब भी मैं आपको बताऊं, एक इससे ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है, इन जनरल में आपको एक बात बता रहा हूं, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कॉलेज के टाइम पे, मास्टम को कम को छुट्टी हो कुछ भी हो, तो ही काम आपको कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आप सारे टेक वाले ही ज्यादा नहीं हो तो भी अपनी फील्ड का काम करना। तो जो भी आप कर रहे हो ना, या तो डेवलपमेंट या तो डीएसएफ उस पे टाइम लगाओ, या फिर एंजॉय करो उस पे टाइम लगाओ, टाइम वेस्ट मत करना बस। क्योंकि मेरे से यही गलती हो जाती थी, मैं क्लासेस में तो आता नहीं था, तो घर पे बैठ के भी टाइम पास करता था, तो दोनों तरफ से नुकसान होता था, इधर अटेंडेंस भी नहीं मिलती थी, उधर मैं कुछ सीखता भी नहीं था। फिर मैंने ये रूल बनाया कि करूंगा तो मैं दोनों में से कोई एक ही काम, या तो मैं मजे करूंगा, तो मैं क्लास बंद करके घूमने चले जाता था, तो एक काम तो हुआ ना। फिर एक दो बार क्या दिल्ली में ज्यादा चला तो मेरी घूमी छुट्टी हो गई, अब तक तो नहीं भी घूमने तो घूमी हो गई। तो फिर क्या हुआ, फिर डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया, फिर नहीं हो, फिर कुछ और करने का ना मन ही नहीं करेगा। फिर आपको न्यू चीजें दिखेंगी कि यार मैं चैटिंग ऐप बनाऊं, मैं ई-कॉमर्स ऐप बनाऊं, मैं कुछ नया आएगा, कुछ भी नया मार्केट में आपको लगेगा इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाऊंगा। इंस्टाग्राम पे जैसे सर्कुलर में स्टोरीज आती हैं, ऐसे मेरे ऐप पे स्टोरीज हैं। आपको खुद का पोर्टफोलियो तो आप मस्ट है, आप बनाना ही बनाना। कोई भी नेक्स्ट टाइम आप सीखो, फ्लटर सीखो तो अच्छा है, ना सीखो तो जो भी सीखोगे उसमें पोर्टफोलियो ऐप का अपना फर्स्ट ईयर के टारगेट रख लो, खत्म होने से पहले आपकी खुद की एक वेबसाइट पे लाइव होनी चाहिए। गिटहब पे एक पोस्ट को करो, आप डिप्लॉय करो, भले सपोर्ट होनी चाहिए। सपोर्ट आपको देखो स्टूडेंट का मिलता है, नेम जी का डॉट भी लोग फ्री मिलता है सबको, एक साथ है उसको यूज कर लो, उतना अच्छा है, मतलब अपनी पोर्टफोलियो लाइव कर सकते हैं। अब आप देख रहे हो ना यहाँ पे ये फील्ड्स लिखी आ रही है, नेम है, ईमेल है, मैसेज है। अब जब आप इसमें स्क्रॉल करोगे तो नीचे सेंड का भी ऑप्शन दिखेगा। तो मतलब मैंने ऐसा बना दिया कि कोई भी मेरी वेबसाइट पे आएगा, अब उसको कोई डाउट है तो जरूरी नहीं है ना भाई, देखो होते तो सब आलसी हैं अंदर से। तो मैं आलसी हूँ तो मुझे लगा कि और जो मुझे देखने आएंगे वो भी आलसी होंगे। तो अब वो क्या है कि जरूरी है क्या, वो जो मेरा फोन नंबर लिखा हुआ है उसको पहले कॉपी करेंगे बार बार, फिर व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करेंगे, नहीं ना, ऐसा जरूरी नहीं है। और कोई इतना एक्टिव तो होता नहीं, तो उसके लिए मैंने क्या
को आपको मैसेज दिख रहा होगा, सब्जेक्ट भी दिख रहा होगा, उसके बाद आप वहां से जैसे सेंड करोगे तो मेरे पास मेल आ जाएगा आपका। तो इस ये तो बहुत ही छोटी चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही छोटी चीज है, मैंने बहुत टाइम टेस्ट किया है। अगर आप आए हो, आप 6 महीने दे दोगे ना, 6 महीने में बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, ईमानदारी से 4, 5, 6 महीने दे दोगे आप, तो आप लगभग जितने भी, और एक चीज और कि दुनिया में ना सिर्फ 15-20 ऐप भी एक्सिस्ट करते हैं। आपको लग रहा होगा प्ले स्टोर पे तो हजारों ऐप्स हैं, वो सब बेकार है, क्या नहीं। टाइप ऑफ ऐप्स जो होते हैं ना वो हमेशा 15-20 ही होते हैं, बाकी सब उसके क्लोन होते हैं, तो यूआई में चेंज होता है। आप लिंक्डइन खोल के देखो, सेम इंस्टाग्राम जैसा है, मैसेज भी कर सकते हैं वहाँ, पोस्ट भी कर सकते हैं वहाँ, एक स्टोरीज का तो ऑप्शन नहीं है, आप थोड़े टाइम रुक जाओ, उस पर भी आने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ उस पर आने वाला है स्टोरीज का ऑप्शन। रील्स नहीं आएगी उस पर, क्योंकि फिर वो थोड़ा कई लोगों को क्रिंज लगता है रील, तो हो सकता है वो रील्स ना आए, पर हो सकता है वो लोग वो भी डाल दें। ट्विटर देख लो आप, ट्विटर पे चैट भी कर सकते हैं, पोस्ट भी कर सकते हैं। तो ट्विटर और लिंक्डइन में अंतर क्या है? अंतर तो हमने बनाया है कि भाई वहाँ पे सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प और इलॉन मस्क ये चलेगा और यहाँ पर खाली जॉब प्लेसमेंट ही चलेगी, तो हमने बनाया ना अंतर, उन्होंने तो नहीं बनाया था अंतर। तो ऐसा ही होता है, सारे लोग ही एक दूसरे के। अभी आप व्हाट्सएप पे देखो, व्हाट्सएप पे क्या है, एक पोस्ट का ही ऑप्शन नहीं है, स्टेटस आप लगाते हो, स्टेटस जो है वही स्टोरी भी है, 24 घंटे वाला काम, चैट भी आप कर ही रहे हो, बस एक पोस्ट का ही तो अंतर है। तो अब आप सोचो ना, व्हाट्सएप का ही इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक का ही तो है, व्हाट्सएप भी और इंस्टाग्राम भी। फेसबुक ही देख लो आप, फेसबुक पे क्या अलग है, पोस्ट कर रहे हो आप, मैसेज कर सकते हो आप, अभी बीच में फ्रेंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन डाल दिया इन्होंने, जिसको जो भी फ्रेंड बनेगा खाली उसी से बात कर सकते हैं, अगर मैसेज तो उसको भी भेज सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे होता है रिक्वेस्ट जाती है। तो तीनों काम तीनों प्लेटफॉर्म पे सेम ही हो रहे हैं और तीनों से पैसे कमाए जा रहे हैं करोड़ों रुपए। आप खुद सोच करके देखो ना, तो अंतर क्या है? थोड़ा बहुत अंतर करने जैसे क्या इतना बड़ा अंतर आ जाना चाहिए? तो टोटल 15-20 ऐप ही होते हैं, जैसे एक यूट्यूब हो गया तो वो वीडियो स्ट्रीमिंग का ऐप है ना, स्नैपचैट है जैसे, तो स्नैपचैट पे भी यही है, आप कुछ भी लगाते हो 24 घंटे चलता है, और क्या है, पोस्ट कर सकते हो जो सामने वाला सेव कर सकता है, सेम ही फीचर है, पर स्नैपचैट के भी अपना अलग यूजर बेस है, इंस्टाग्राम का अलग यूजर बेस है, तो काम सब सेम ही कर रहे हैं, पर प्लेटफॉर्म सबके अलग है, कंपनी सबकी अलग है। तो आप भी स्टार्ट करो, 15-20 ऐप भी होते हैं, सारे बना लोगे आप, थर्ड ईयर तक पक्का। और कोई डाउट हो आपको? ये जो चैट जीपीटी वाला बनाया था, ये एपीआई यूज किया? हाँ, चैट जीपीटी की खुद की होती है, क्या ओपन एआई के नाम से, वो वहां से इंपोर्ट होती है, फिर आप यूज कर सकते हो। वो चैट जीपीटी वाला मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, उसमें ना एक प्रॉब्लम ये है कि वो जो ओपन एपीआई है उसको ना आप डिप्लॉय करने के बाद नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि ऐसे तो फिर मैं अपना बना करके डालूंगा ना, तो आप मेरा यूज करने लग जाओगे, उनका यूजर बेस तो खराब हो जाएगा ना। तो उन्होंने ऐसा एपीआई को ऐसा बना रखा है कि वो पब्लिकली नहीं है, उसको आप यूज इंपोर्ट करते हो, अपने ऐप में यूज करते हो और अपने सिस्टम में आप चला सकते हो जितना चाहे। तो आप जब डिप्लॉय कर देते हो ना उसके बाद में, हालांकि अब ऐसा हो गया है कि अब काफी एपीआई ना जो पेड एपीआई है, जैसे आपको मैं बताऊं, एक जो रेलवे वाली एक यूज करी होगी ना आपने कि ट्रेन कितने बजे आएगी, कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, वो ऐप पे पता चल जाता है। तो ये वाली आप देखोगे आईआरसीटीसी की वेबसाइट ऐप्स होनी है सारी, प्राइवेट ऐप्स इतनी सारी है, रेल यात्री वगैरह कितनी सारी ऐप्स है, सब वो एक सेम चीज दिखा रहे हैं। वो जो एपीआई यूज कर रहे हैं ना, मेरा वही मन था वो बनाने का। जब मैंने वो बनाना स्टार्ट किया तभी मुझे ये बात पता चली, वरना मुझे भी नहीं चलती कि जो उनकी रेलवे की जो एपीआई है ना वो पेड एपीआई है, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए मैंने वो नहीं बनाया। आप बना सकते हो, आप पैसे दो, वो एपीआई को रिपोर्ट करो, उसको बना सकते हो, अपना खुद का उस पर ट्रैफिक भी अच्छा आएगा। मेरा मेन मोटिव तो ये था कि वो बनवा करके उसको प्ले स्टोर पर चढ़ा दें, क्योंकि वो ऐसा है ना सब डाउनलोड कर लेते हैं। रेलवे को तो देखना ही है ना, दुनिया की जितनी भी आबादी है ना, जितनी करोड़ आबादी है, उससे ज्यादा लोग इंडिया में एक साल में ट्रेन पे ट्रैवल करते हैं। आप सोच करके देखो, इतना तगड़ा रेलवे नेटवर्क है, तो उसकी एपीआई का मेरे मन में एयरलाइन का भी आया था, पर वो भी पेड एपीआई है। तो ऐसी एपीआई जो होती है ना गवर्नमेंट वाली, वो ज्यादातर पेड ही होती है, ताकि हर कोई बना करके ना डालता रहे। अच्छा, तो थोड़ा सा फ्लटर का देख लीजिए कि कैसे इंस्टॉल करते हैं लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे। उसके लिए हाँ, तो सबसे पहले फ्लटर करते हैं, सबसे
इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्लटर के डॉग्स। फ्लटर के डॉग्स से कुछ है जो हमें चाहिए सीखने के लिए फ्लटर एसेंशियली सारी चीज़ें वहीं से रिकॉर्ड हो जाती है और काफ़ी चीज़ें स्टैक आउट हो जाती है। तो फ्लटर के साइड पर आता है फ्लटर डॉट डेवलप फ्लटर डॉट डेवलप एक ही साइड में आपको मतलब और ये पूरी फ्लटर में मिलती है राइट है। तो डॉग्स पे आके सबसे पहले अच्छा इधर और भी कंपनीज की एग्जांपल है जैसे DLW और पिज्जा और भी कंपनी में फ्लटर यूज करती है। इस साइड से कुछ यूज करना भी सही से और क्या हम इंस्टॉल फ्लटर से आता है तो अब विंडोज मैकओएस लिनक्स और इवन क्रोम ओएस में भी फ्लटर ऐप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम अभी विंडोज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट होती है बेसिक, इसका मैं कुछ नहीं देखना। सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं कि गिट फॉर विंडोज है हमारे पास या नहीं, गिट इंस्टॉल कर रहे हैं गिट इंस्टॉल करके सेटअप है बस नेक्स्ट कर रहा है ठीक है दैट्स ऑल। और उसके बाद फ्लटर एग्जीक्यूट में डाउनलोड कर लिया और फ्लटर एग्जीक्यूट जो है अपने जैसे कि डॉक्स इंडस्ट्री होते हैं अपने सी ड्राइव में डालते हैं विंडोज की केस में सोर्स फोल्डर बनाओ और सोर्स फोल्डर के अंदर फ्लटर करके कुछ से स्टार्ट करते हैं ठीक है। और इसका जो बिन वाला फोल्डर है उसको हम अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में डाल सकते हैं। अगर मैं आपके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में बताऊं तो यहाँ पर पाथ में जाके बिन वाला फोल्डर डालना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लटर होगा ये रहा ठीक है। ये फ्लटर आप ग्लोबली तुम्हारे कंप्यूटर में अवेलेबल है ठीक है। उसके बाद जब ये हो गया तो फ्लटर इंस्टॉल तो हो गई बट फ्लटर चलाएंगे कहाँ? फ्लटर हम चला सकते हैं या तो अपने फोन में या क्रोम ओएस में या एमुलेटर। तो एमुलेटर अगर तुम्हारे डिवाइस की रैम 8 GB से ज़्यादा है रादर रैम को 12 GB से ज़्यादा है तो आप एमुलेटर यूज करो उससे तो जल्दी ड्राइव कर सकते हो। एक और 8 GB वाला कंप्यूटर है तो सिंपल है अपने फोन को कनेक्ट करो उसमें यूएसबी को एनेबल करो और उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट करो ठीक है। और अभी हमारे लिए एमुलेटर भी चला है तो हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं हम देखेंगे कैसे क्या करेंगे। अच्छा एक और चीज 2 एक्सटेंशंस डाउनलोड कर लिए जो कंपलसरी है फ्लटर के लिए दैट इज फ्लटर एंड डार्ट बोथ VS Code और एंड्रॉइड स्टूडियो दोनों पे एंड्रॉइड स्टूडियो पे डाउनलोड कर सकते हो और उसमें प्रोजेक्ट ड्राइव बना सकते हो वो भी हम खुद में करेंगे। बट पहले हम प्रोजेक्ट बनाना नहीं जब तुम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स एडिट करोगे और एंड्रॉइड स्टूडियो सेटअप करोगे सारी चीजें सेटअप हो जाएंगी कि तुम चेक करने के लिए कुछ एरर्स तो नहीं आ रहे उसके लिए तुम फ्लटर डाउन कर यूज करोगे फ्लटर डाउन करेंगे। ये जो कमांड है ये याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि हम में एरर आते रहते हैं। अगर हम रन करेंगे तो होपफुली कोई एरर नहीं आएगा। हाँ और दूसरा फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या करना है फ्लटर क्रिएट और आपने याद करना सिंपल। तो अब यहाँ कुछ एरर आ रहा है लेट्स फ्लटर क्रिएट हाँ अगर सारे इश्यूज कोई भी इशू किया था तो डिग्री में और ये आप बहुत जल्दी में मिल जाएगा तो ये भी एक फ्लटर से आप बहुत जल्दी मिल जाते हैं। अच्छा अब हम इसके अंदर सीधी कर लेते हैं ठीक है। अब इसको VS Code बोले तो कोड डॉट करके ये डायरेक्ट लिंक हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बहुत सारी फाइल देखिए डरना नहीं है सिंपल अपने को बस लिब फाइल लिब वाला फोल्डर देखना है और एक ऑब्जेक्ट डॉट करके फाइल है जो तुम्हारी अगर किसी ने नोड यूज कराया जावास्क्रिप्ट यूज करिए तो पैकेज डॉट जेसन जैसे लिखिए उसमें इसमें हमारे सारे पैकेजेस आ जाएंगे और पैकेजेस की फाइल में वेबसाइट पर हमारे pop.net यहाँ पे सारे दुनिया भर के पैकेजेस मिल जाते हैं फ्लटर के जो मोस्ट पॉपुलर पैकेज है वो सब मिल जाएगा। और इसके बाद
ये बेसिक जो ऐप बनती है वो काउंटर ऐप होती है, एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए हमारे पास 3-4 ऑप्शन है। अब मैंने इसमें एंड्रॉइड भी सेटअप कर रखा है, विंडोज भी सेटअप कर रखा है, वेब भी सेटअप कर रखा है। तो अगर मैं एमुलेटर से चला लेता हूँ, एंड्रॉइड एमुलेटर, थोड़ा सा टाइम मिल गया तो विंडोज स्टार्ट हो गया, बट लेट्स या हम क्रोम में भी चला सकते हैं, इसको क्रोम में चला लेंगे और चल जाएगा। तो आप इस ऐप में स्टेट मैनेजमेंट के लिए कुछ भी यूज नहीं किया हुआ। इन्होंने बेसिकली स्टेटफुल और स्टेटलेस स्टेट बताया हुआ है। स्टेटफुल और स्टेटलेस स्टेट का मतलब क्या है? स्टेटलेस मतलब जिसकी स्टेट नहीं है, स्टेटफुल मतलब इसकी स्टेट है, और स्टेट का मतलब तो आई गेस मुझे बताया नहीं लगा, बट अगर कोई पूछना चाहता तो आगे हम स्टेट करेंगे। अब इन्होंने क्या करा हुआ, बेसिकली एक ऐप है जिसके पीछे बटन है, उस पर क्लिक करेंगे तो नंबर अपडेट होकर डिस्प्ले पर आएगा। या नहीं कोई अच्छा फाइल फ्लटर पाइथन रिस्पॉन्सिव डेवलपमेंट सपोर्ट करता है, तो उसे रिस्पॉन्सिव बनाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सही से सारे फीचर्स यूज कर रहे हो तो अपने आप ही रिस्पॉन्सिव करेगा। ये सिंपल है जिसमें बटन चाहिए था। अब इसका हम टेक्स्ट वगैरह से करते हैं तो देख लेते हैं। अब जैसे मैं सेव करूँगा ना, यहाँ पर इंस्टेंटली अपडेट हो जाएगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो यही वही चीज़ें जो स्टैंडर्ड वेब डेवलपमेंट में होती है, बट ऐप डेवलपमेंट में ऐसा नहीं होता। बट फ्लटर पहली बार ये चीज़ लेके आया था, जो बहुत अमेजिंग चीज़ है। रिएक्ट नेटिव में भी थोड़ा सा बाद में इंट्रोड्यूस करा था, और ये बेसिकली आपके फ्लटर की जो मेन सुपर पावर है वो। अब इसके अलावा हमने 2 सेशंस और किए थे जिसमें फ्लटर को डिटेल में डिस्कस किया था, और एक पोर्टफोलियो ऐप और रिव्यूज के बारे में बात करेंगे। आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हो, आई गेस लाइव में हो साइट पे। और इसके अलावा और क्या समझिए, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। लेटर वर्सेस स्कॉटलैंड, लेटर वर्सेस स्कॉटलैंड दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन हैं, बट अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आई गेस लेटर सही होगा। क्यों? क्योंकि कॉटलैंड को जो काफ़ी डीप और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल लर्निंग है, इनको टाइम लगता है, और जब तक हम रिजल्ट्स देखेंगे कुछ अच्छी ऐप बनेगी, कुछ ऐसी चीज़ बनेगी जो किसी ऐप में ले जा सकता है। आई थिंक यू वुड बी वर्किंग, है ना? मतलब सब कुछ एक ही जल्दी जल्दी मिल जाए। इसलिए मैं मॉडर्न में मानता हूँ कि हाँ नेटिव सीखना जरूरी है, क्योंकि तुम डिवाइस के बारे में, हार्डवेयर की थिंकिंग काफ़ी कुछ सीखते हो। तो पहले तो क्या करो, फ्लटर सीख लो, ठीक है? फ्लटर के एक बार चैट कर लो, उसके बाद नेटिव को सीख लो। अगर तुम्हें नेटिव जाना है, बट नेटिव जाने का कोई फायदा नहीं है। अगर तुम स्टार्टअप में काम कर रहे हो तो वहाँ आज रिएक्ट नेटिव या फ्लटर चल रही है। जैसे मेरे एक स्टार्टअप करके जूबे करके एक स्टार्टअप है, जूबे मैंने टर्न करी थी लास्ट 2021 के एंड में, है ना? तो वहाँ पर वो फ्लटर में प्रोडक्ट का पूरा फिटनेस प्लेटफॉर्म बनाया, और अभी मैं 3 ब्लैक बॉक्स करके रिटर्न कर रहा हूँ, वहाँ पर रिएक्ट नेटिव यूज होते हैं। तो कॉटलिन और स्विफ्ट जैसी चीजें ना बड़ी कंपनी यूज करती है, वो भी इसकी पूरी लेगेसी पे चलती है। अब ऑलरेडी आप करी हुई है, अब ऑलरेडी जब ऑरेकल का सॉफ्टवेयर सब कुछ बना है, उनकी वेबसाइट की उसमें कोड है, वो उतनी चीजें चेंज नहीं कर सकते। मतलब इट टेक्स मच एफर्ट टू स्टीयर अ शिप ऑफ दैट साइज, राइट? तो ये छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, हैकाथॉन में लेके जाने हैं, या स्टार्टअप्स में काम करना है, या फिर कोई भी नया अपॉर्चुनिटी है जो अभी स्टार्ट करें, वहाँ पर फ्लटर या रिएक्ट नेटिव यूज होगा। द क्रॉस प्लेटफॉर्म इज द न्यू हाइब्रिड, राइट? हाँ, उसमें फ्लटर बैकएंड में मतलब MongoDB, Node.js सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्टर्स यूज करें। फ्लटर इज बेसिकली अ UI tool, राइट? फ्लटर का बोलते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म एसडीके फॉर UI, ऑफिशियल डेफिनेशन के हिसाब से। तो
फ्लटर में UI बनता है, बैकएंड नहीं बनता। बैकएंड काम बन जाता है और आई एम आल्सो वर्किंग ऑन दैट, बट Node.js is the best thing for backend development अभी भी। तो जैसे कि आपको एप्लीकेशन की वेबसाइट पे आना है, हाँ दूसरे फॉलो लैंग्वेजेस अच्छा तो लेट्स से कि अगर हमारे पास एक वेबसाइट है जहाँ पर हमारे पास ट्रैफिक 50,000 लोग हैं, ठीक है, और दूसरी चीज़ की हमें ऐप भी चाहिए, तो हम यहाँ पर दो चीज़ें कर सकते हैं। 50,000 लोगों के लिए अगर हम यूज डेवलपर हैं जो कि बहुत सारे, तो हम फायरबेस यूज कर सकते हैं। फायरबेस 50,000 लोगों के आपको बैकएंड डेटाबेस दे देगा इंस्टेंटली, बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि पैसे बहुत लेना होगा, मतलब पैसे इतने लेगा कि on the first of the month we will wake up and $34,000 of बिल आ गई, मतलब आपकी हो जाएगा और आपका सारा डेटा उनके पास है। तो सारी कंपनी से मदद करती है, अगर हमारा डेटा मतलब हम काफी सारे यूजर्स को इंटरैक्ट कर रहे हैं तो वी शुड यूज Node.js या MongoDB पे ठीक है, क्योंकि बेसिकली आप सारे फंक्शन के खुद बना रहे हो, तो आपको ऑथेंटिकेशन करनी है, तो आपको JSON वेब टोकन से लेके सारी चीजें खुद बनानी पड़ेगी, वो और यूज करना पड़ेगा गूगल के लिए। तो लेट्स कम टू मेरे को क्या पसंद है, मेरे को अगर मैं आज की वेबसाइट बना रहा होगा तो मैं फ्लटर से उसको UI लिखूंगा, क्योंकि मुझे फिर वेबसाइट की अलग UI लिखना, ऐप की अलग UI लिखना, सब कुछ करना है। बैकएंड में Node.js MongoDB एक्सप्रेस यूज करता हूं या Golang भी एक ऑप्शन है, बट दीज आर द फ्यू थिंग्स जो मैं यूज करता हूं। और मार्केट में क्या चल रहा है वहाँ पर हम जा सकते हैं कि अगर नई वेबसाइट बनानी, जैसे कि मेरे को ऐसी वेबसाइट बनानी है जिसमें बहुत सारे 3D एलिमेंट्स हैं, तो मैं फ्लटर यूज भी करता हूँ, तो फिर मैं वहाँ पर जाऊँगा स्ट्रेटली आफ्टर क्विक या सॉलिड, है ना। और अगर ऐप बनाने में तो इसमें मेरी बहुत अच्छा फ्लटर ही है, क्योंकि फ्लटर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है ऐसे। और वेब पे फ्लटर का तकरीबन 10 से 20 सपोर्ट आ गया, तो अभी फ्लटर फॉरवर्ड नहीं आया था 2023 में, तो वेब के लिए भी आपको आपकी नियर नेटिव परफॉर्मेंस और तो डेवलप ये छोटी सी बात मैं बता देता हूँ। जिनको ये ना बताओ कि फायरबेस क्या होता है, Node.js क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है। तो देखो फायरबेस जो है ना वो तो गूगल का ही है, तो गूगल ने ये किया कि गूगल ने जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स बैकएंड होता है ना, आप लोगों ने सुना ही होगा कि फ्रंट एंड तो सब कर देते हैं, बैकएंड में लगता है असली दम तो वो जो चीज है ना वो गूगल ने बहुत सिंप्लीफाई कर दी। अब कुछ सिंप्लीफाई किया तो उसके लिए चार्ज तो करेंगे, तो गूगल ने क्या किया, जो कस्टम बैकएंड होता है ना, जो खुद से बनाया हुआ होता है, उसकी जगह गूगल ने फायरबेस बना दिया, जिसको आपको इम्प्रूव करना है और यूज करना है उसकी फंक्शनैलिटीज को, आप लगभग सारी चीजें फायरबेस पे कर सकते हो। पर वहीं पे वो कॉस्ट वाली बात आ जाती है कि फायरबेस शुरू में तो फ्री है एक लिमिट तक, उसके बाद उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। जैसे Amazon के AWS जो है उसके साथ भी सीपी है, जो वेब सर्वर जो है Amazon का, उसके साथ भी शुरू में तो वो फ्री है, पर जब पेज स्टार्ट होता है ना तो उसका प्राइस बहुत ज्यादा है, उसको अफोर्ड करना ही बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो लोग वेबसाइट भी बनाते हैं चाहे बैकएंड लिखते हैं Node.js पे, तो वो हेरोकू पे डिप्लॉय करते हैं। अब हेरोकू ने भी बहुत कंडीशंस लगा दी हैं, पर लोग इसी पे करते हैं ताकि वो फ्री में हो जाए, वरना AWS पे करने के लिए बहुत पैसे देने पड़ते हैं। MongoDB भी जो है एक लिमिट तक 5 GB की लिमिट होती है, उस तक फ्री होता है, उसके बाद वो भी चार्ज करता है। पर MongoDB का चार्ज ना फायरबेस के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए लोग बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये QR स्कैन करके RSVP करना है, अपना कम्युनिटी बंद कर लेगा 3 days की, और अगर कुछ और गाइडेंस चाहिए तो व्हाट्सएप वाली चैट भी कर सकता हूँ। ये वाला थोड़ा सा और
बाकी तो मैं बहुत किसी को कुछ जॉब हो सकता हूँ। Thank you everyone. That brings us to the end of this session. मुझे पूछना है कि तुम लोगों को सेशन ही कैसे लगा आज का? मतलब मुझे तो काफी इंसाइटफुल लगा ये सेशन। आई एम दी आर्किटेक्ट टीम एट TDSC DT और मैं थर्ड ईयर में हूँ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ डिग्री से। तो मैं कॉलेज और फ्लटर दोनों में ही आकर कंप्लीट करता हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मुझे इंजीनियरिंग की फ्लटर आती है अभी। मैं सीख रहा हूँ फ्लटर, बट मेरे को कॉलेज और फ्लटर दोनों ही आती है, थोड़ी बेसिक बेसिक। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा देखिए कि फ्लटर की क्या पावर है आज की। जैसे फ्लटर अब मुझे मल्टी प्लेटफॉर्म ऐप्स बनानी आती है, मुझे हैकाथॉन्स में जाना है। अब मैं जब कॉलेज में कोड कर रहा हूँ तो कॉलेज में मुझे हमेशा दिमाग में रहता है कि इतना सारा मुझे समझना पड़ेगा वो कोड। फ्लटर का जब मैं कोड सीख कर रहा हूँ तो फ्लटर में काफी कोड जो है वो मेरा काफी कंसाइज आता है। तो सेम चीज जो मुझे कॉलेज में इम्प्लीमेंट करनी है, फ्लटर में इम्प्लीमेंट करनी है, कॉलेज में शायद मुझे आधा घंटा लगे, फ्लटर में वो 5 से 10 मिनट के अंदर इम्प्लीमेंट कर दूंगा। तो हैकाथॉन्स जैसे हमारे कॉलेज में काफी हैकाथॉन्स हो रही है, हमारी मीटिंग के लिए अभी हैकाथॉन आ जाएंगे आज इस वीकेंड। तो हैकाथॉन्स में हमें वी वांट टू गिव अ क्विक प्रोटोटाइप कि हमें एक आइडिया के ऊपर क्विक प्रोटोटाइप चाहिए, दिखाना है कि हम अगर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हो उस आइडिया को तो कैसे करेंगे अपनी तरफ से। तो उसके लिए मुझे लगता है मेरा बिगेस्ट टेकअवे है इस सेशन का कि अगर मैं फ्लटर यूज करूं तो दैट विल बी सुपर बेनिफिशियल फॉर मी। क्योंकि जैसे अब मैंने DSC तो किया है अपने कॉलेज कोर्स में, लेकिन अब मुझे थोड़ा डेवलपमेंट साइड जाना है, अपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, अपने प्रोफाइल में स्टैंड आउट करवाना है, हैकाथॉन्स में लैब चलेगी, आइडिया इम्प्लीमेंट करना भी आता है, आइडिया सोचना नहीं आता, आइडिया इम्प्लीमेंट भी करना आता है साथ में। तो इसीलिए अगर मैं हैकाथॉन्स में जाऊंगा और मैं फ्लटर यूज करके अपना प्रोटोटाइप प्रेजेंट कर सकता हूँ तो मेरे लिए काफी वो लर्निंग एक्सपीरियंस का एक अच्छा होगा, क्योंकि मैं कनेक्ट तो कर रहा हूँ। अगर मल्टीपल लोग आइडिया इम्प्लीमेंट करें तो अपनी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बताते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि बस ऊपर ऊपर से बता दिया कि हाँ ये ऐसे होगा वो वैसे होगा। मैं उन्हें एक्चुअली लाइव डेमो देके दिखा सकता हूँ, क्योंकि ऐप रन करने के लिए जैसे मैंने दिखाया बस हमें VS Code पे जाके क्लिक का बटन दबाना पड़ता है, उसके बाद एमुलेटर खुल जाता है, एमुलेटर में हमारी ऐप रन हो जाएगी। So that was the biggest takeaway from my side. I hope you also had something to take away. कुछ सीखने को भी मिला आज, and we hope that you will also attend our future sessions. Thank you so much for attending this.